I don't want to make it seem like more like a hierarchy of leadership. Let's say. Okay. Put So anything above. so And then we have so who's worthy in this hierarchy of leadership? Who's worthy of worship? that's a matter of contention. I mean, if you ask the Catholics, they pray to they pray to the Virgin Mary. They pray to saints. So, What about you? me personally, I have my own way of doing things. Would you want to elaborate that if you don't mind? I would rather not. Okay. All right. Yeah. So, well, that's the most important thing for me. I wanted to know what your belief system is, so that I can ask a few questions and we can continue our discussion. And I think this discussion is my great. viewpoint on this is that Christians and Muslims are kind of looking at the same thing from different angles. If you No, that is not correct. That is not correct. Trinity is completely a different angle. If you look at the Quran in an open words rejects Trinity. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ. Don't even say three. I mean, don't even use the word three for God. God is one. Now, when you believe in Trinity, and whether it's God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, you are. So let me ask you this question: do you think that God is compound or singular? It depends on what you mean by that. It depends on God the Father, singular. Well, keeping the concept of Trinity in mind. So it's kind of like how the United States. Would you say that the government in the United States is singular? We have different. It's compound. Separate. It's compound. No. Yeah, we have compound government. It is compound. One doesn't contradict with the other. For example, let's take the government, the administration, the Biden administration. Is it compound? Is it like one man running the show, or he has his secretaries and his aide and his supporters? They're running the show. Is it one or many? Yeah, but I just want to get on to another point, because I didn't come here to argue about the doctrine of the Trinity or specific doctrines. I'm fully aware of the Islamic views on the Trinity, and that the Islamic faith rejects the Trinity. What I'm trying to ask you is, sell me on the Prophet Muhammad. What are like, if somebody were to ask me about like Jesus, we would say Christians believe him to be perfect in every way. They believed him to die on the cross for sins. So do the same thing for me for the Prophet Muhammad. To someone in the West, without starting a debate over. Well, because if this is your my brother Chris, if this is the point that Jesus died on the cross because of people, this is not a selling point for me or for any of the Muslims. I'm not trying to sell you. I'm not trying to sell you. No, because you have set the standard that we have to have something like that. Yes, sacrifices for the entire mankind. Prophet Muhammad, all his life, especially after he became the prophet at the age of 40 and he passed away at the age of 63, all his life was praying for the ummah, for their forgiveness. Those whoever will follow him will be in paradise, will never go to hellfire unless if they commit a crime or sin. Then they might go to hellfire, and after that they will be brought back to paradise. So, but if you are asking something that Prophet Muhammad, something like this, that he died for the sake of people, no, he didn't, because this is not the proper standard. This is not even a right rational logical standard. I know it's not that I'm completely ignorant on the Prophet Muhammad. And I'm giving you an opportunity, like again, going back to my question, to someone who's in the West, who's never really been, I mean, I've been exposed to it a bit, but who hasn't, for all intents and purposes, been exposed to it. What would be your main selling point? Chris, bro, if you're asking me that, tell me something unique. Quran says that ma kuntu bid'an min ar-rusul, that, oh Muhammad, tell the people that I am not a new kind of a messenger. Messengers have come before me, prophets have come before me, and I am telling you the same thing as the prophets previously and messengers previously have been saying. So if Prophet Muhammad didn't say anything new except for some laws that are obviously related to his Sharia, fundamental idea never changed. And I think if I am selling the idea of Islam to a person living in the West, I would say the same thing, that this message that Prophet Muhammad brought to us is that don't be slave of the system, don't be slave of men, be slave of your creator. That's the main idea that all the prophets and messengers have been, talking about. Okay, I think that's a good answer. I mean, if anybody wanted to elaborate on that, I'd be interested, but I think that answers my question. Thank you. Okay. Thank you very much. So I would like to translate it, just summarize. Okay, Chris, just give me a second, okay?
मुफ्ती साहब जो हैं उन्होंने बड़ा जबरदस्त आखिर में जो पॉइंट रखा है, मैं ये समझता हूँ कि कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिटहुड को बड़े जबरदस्त तरीके से क्लियर कर दिया। बात चली कैसर भाई ने जो वजाहत पेश की, उसके बाद नाजरीन मुफ्ती साहब ने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिटहुड पर बात की कि प्रॉफिट क्या है, क्यों आते हैं, किस तरह वो खालिक के साथ लिंक करते हैं। फिर उसके बाद मुफ्ती साहब ने एक सवाल किया कि अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैलिड प्रॉफिट मानते हैं, जो कि ये कह रहे थे, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप उन पर ईमान ना लेके हैं? और क्या ये मुमकिन है कि आप उनको एक वैलिड रसूल मानने के बाद भी ये कहें कि उनकी कोई बात झूठी हो सकती है या वो झूठ बोल सकते हैं? ये बड़ा अहम पॉइंट था। फिर उसके बाद थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन की बात हुई कि पहली शरीयतों में ये था, जिस तरह पर ओल्ड टेस्टामेंट में मूसा अलैहिस्सलाम का तलाक का जो हुक्म था उस पर जिक्र किया, इसलिए इस्लाम में एब्रोगेशन, जिसको नासिख और मनसूख कहते हैं, तसव्वुर है, हम उसको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कहते, वी कॉल इट एब्रोगेशन। ठीक है, कि आप नासिख और मनसूख नसख के जरिए अगले हुक्म आते हैं, शरीयत तब्दील होती है। उसके अलावा कॉन्ट्रडिक्शन की बात हुई बाइबल के अंदर। कैसर भाई ने इनसे पूछा कि क्या दो किताबें आपके सामने रखी जाएं और एक ऐसी किताब हो जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो, तजाद हो, और दूसरी ऐसी किताब जिसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, आप किसको खुदा का कलाम मानेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं उसी को खुदा का कलाम मानूंगा जिसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन ना हो। फिर मगर वो उस पर बजिद थे कि कॉन्ट्रडिक्शन होना ये जरूरी नहीं है कि आप उसको खुदा के कलाम से निकाल दें, हो सकता है हमारे देखने में कोई गलती हो सकती है जिसको हम कॉन्ट्रडिक्शन कह सकते हो। अच्छा, उसके बाद ट्रिनिटी के ऊपर बात हुई, तो हजरत ने उनसे पूछा कि ट्रिनिटी के बारे में आप क्या कहते हैं? तो वो ट्रिनिटी पे बात ही नहीं करना चाह रहे थे, हालांकि बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने कहा मैं बात नहीं करता, तो कहा कि आप अपने अल्फाज में उसको एक्सप्लेन करें। तो उन्होंने कहा ये एक ये सवाल हायरार्की सुनते है, ही यानी तो ये दर्जा सवाल बंदी सुनते ही है तो वो खुदाओं। कन्नी ओरिजिनल ये कॉन्सेप्ट सवाल है सुनते तो वो वो कन्नी काट यही गए है कि भाई। 3 नहीं है, 1 है और बराबरी में है, किसी को वलादा नहीं मानते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो उसको हायरार्की उन्होंने बनाया कि पहले ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इस तरीके से उन्होंने कहा। खैर बहरहाल उसके बाद कंपाउंड का सवाल पूछा कि अगर आप खुदा के कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं तो कंपाउंड है, सिंगुलर है, यानी वो कसरत में है या वहदत के अंदर है, यानी उसमें कसरत है उसके जात में या वहदत है, ये सवाल पूछा मुफ्ती साहब ने। मगर मजे की बात यह है कि हमेशा की तरह जो क्रिश्चियंस हैं वो ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर फिलोसॉफिकल जिम्नास्टिक्स करते हैं, टर्मिनोलॉजीज के अंदर फंसते हैं, और यही चर्च ने भी किया था कि जब उनसे तसलीस और वहदत और कसरत, यानी तसलीस फिर तौहीद और तौहीद फिर तसलीस के कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, तो उस पर कलाबादियां लगनी शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा आखिरी जो पॉइंट था, इसको मैं समराइज कर रहा हूं, जो मुफ्ती साहब ने रखा, मैं समझता हूं बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये बात मैं करने वाला था, जो मुफ्ती साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उसको समराइज किया, वो ये है कि जिन बुनियाद के ऊपर हम एक रसूल को रसूल मानते हैं, जिस तरह आपने जीसस को सच्चा माना हुआ है, उन्हीं कवायद और उसूलों की बुनियाद के ऊपर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल के तौर पर पेश करेंगे। यानी कोई भी प्रॉफिट है, उसके प्रॉफिट होने के लिए एक ही उसूल होगा, रसालत का और नबूवत का एक ही उसूल है, तो उसी को हम पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं जज़ाकुमुल्लाह अपने खैर, आपने जो जबरदस्त ऑडियंस समरी है, की है। बस मैं एक चीज जी जी मैं एक चीज का इजाफा यहाँ करना चाहूंगा इस समरी में कि उन्होंने हमसे ये सवाल किया कि आप वेस्टर्न वर्ल्ड में रहने वाले एक शख्स को आप अगर इस्लाम बेचना चाहे, सेल का लफ्ज यानी इस्लाम ऑफर करना चाहें, वो सेल का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे लोकल, तो कैसे आप क्या बात कहेंगे, कोई ऐसी यूनिक बात जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हो? तो मैंने उस पर ये कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हम कोई यूनिक बात करते ही नहीं, जो कुरान ने नहीं कही। कुरान ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि मा कुन्तु बिदअम मिनर रसूल, कि मैं कोई नया पहली मर्तबा रसूल नहीं आया हूं, मुझसे पहले भी रसूल आए हैं, मुझसे पहले भी नबी आए हैं, जो बात वो करके गए थे वही बात मैं कर रहा हूं। तो अहले किताब को तो ये कहा गया, तो कोई भी नई बात नहीं कही। वो जो बुनियादी चीजें हैं जो हजरत आदम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक चली आई हैं, वही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को दी हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, अलबत्ता मैंने ये बात जरूर की है कि तमाम अंबिया का जो मुश्तरका पैगाम है वो ये है कि इंसान के बनाए हुए निजामों से निकलो और अपने आप को इंसान की गुलामी से निकाल कर अपने बनाने वाले की गुलामी में अपने आप को दो, क्योंकि जब तुम उसकी गुलामी में आओगे तो फिर उसकी हिफाजत में आओगे। लेकिन अगर तुम अपने बनाए हुए निजामों के गुलाम और उसमें जकड़ कर रह जाओगे तो जाहिर है कि जिंदगी के अंदर कभी अमन और सुकून हो ही नहीं सकता। तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने आज क्या दिया है? इंसान के हुए निजाम दिए हैं, लिबरलिज्म है, फेमिनिज्म है, वगैरह वगैरह, इतने सारे इज्म्स हैं, और लोग उन्हीं के असीर और उन्हीं के गुलाम हुए पड़े हैं। ये बात हमने कही। उस पर उन्होंने हजरत, ये मैं वाकई पॉइंट भूल गया था, मैन मेड और जो गॉड मेड है या क्रिएटर मेड जो हमारा सिस्टम है जिसको हम हाकमियत आला की बात कर रहे थे, उसमें बड़ी मजे की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख सकता हूँ वो क्या चीज है। आप क्रिश्चियन हैं, आपको बाइबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। बाइबल में जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं कि एक शोशा नहीं टल सकता इस कानून का जो ओल्ड टेस्टिमेंट के अंदर है, अगर कोई इसको तोड़ने की कोशिश करेगा वो खुदा की बादशाहत में नहीं जा सकता। बाइबल गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 पहाड़ी वाज का वो ये क्लेम कर रहा है कि कोई बंदा भी अपनी तरफ से कानून ला ही नहीं सकता। तो सेंट पॉल कौन होता है? बहुत शुक्रिया। सही।
जबरदस्त। मैं जो ऑडियंस है मैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे जो तल्ख जुमले हैं ना बीच में, इलॉजिकल बंदा है और ये वो इस तरह की बातें इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है काइंडली से इज्तनाब करें, क्योंकि क्रिस जो है ये ट्रेडिशनल सेंस में क्रिश्चियन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मानता है, कुरान को ठीक किताब मानता है, लेकिन उसके जहन में इबहाम है। तो अगर वो हमारे पास आके इस तरह का सवाल वो पूछता है कि उसका जहन इन चीज़ों से क्लैरिटी हो जाए, और यही वजह है कि मैं क्वेश्चंस रख रहा था कि क्वेश्चंस की सूरत में वो खुद गौर व फिक्र करें कि क्या वाकई कौन सी किताब खुदा की हो सकती है। तो वो एक सफ़र है जिसमें हम इंशाल्लाह साथ देंगे क्रिस का, और अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो वो ईमान ले आएंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इंशाल्लाह। कमेंट्स पढ़ के वो डिसहार्ट हों, आना छोड़ दें इधर के लोग मेरे बारे में ऐसा कहते हैं। तो वी आर हेल्पिंग अ ब्रदर बेसिकली, उनको समझ आ जाती है, वो नहीं, दाएं ईमान में आ जाते हैं। जी क्रिस ने कोई ऐसी बात की ही नहीं कि जिससे ये लगे कि वो कोई गुस्ताखी कर रहे हो। एक सवाल रखा है जिस तरीके से एक आम आदमी सवाल लगता है, और मैं समझता हूं कि एक सेंसिबल क्रिश्चियन ये सवाल करेगा। ये सवाल तो है। अब ये है क्या कि काउंटर करने का तरीका क्या है वो एक अलग है, लेकिन बहरहाल कमेंट्स में थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर मुसलमानों को कंट्रोल रखना चाहिए। और ऑनेस्टी भी उनकी बिल्कुल। अप्रिशिएट की है कि उनको सवाल का जवाब समझ आ गया, तो उन्होंने बहस बाय बहस नहीं की, बल्कि कहा ठीक है मुझे अब सवाल का मिल गया। और हमारे जो है ना देसी लोग एथियस्ट वगैरह वो बड़ा सीख सकते हैं इससे कि ये भी एक रवैया होता है। अच्छा, आमिर भाई, दो लोग हैं, रोहित राज हैं और राकेश हैं। क्या बात है मुफ्ती साहब, आज आप अपने असूल को तोड़ के अरे 16 मिनट ठीक पर है, जा रहे हैं। रोहित राज 11 मिनट ऊपर हो गए। ओहो, ये तो गलत हो गया भाई। अब मैंने नाम ले दिया इन 3 दोनों के घंटे बाद से फिर ऊपर हो गए हैं। अरे ये तो गलत हो गया। हाँ, ये जी, ये दो लोग हैं, इनको जल्दी जल्दी लेते हैं। चले गए, एक तो चले गए, राकेश रह गए। चले भाई, गुस्से में एक चले गए हैं, एक चले गए, आगे राकेश आगे राकेश को हम ले लेते हैं, रोहित राज जी भाई भाई, चलते राकेश हैं। हेलो जी भाई, राकेश भाई, हेलो हाँ बोलें, एक जी बोलिए जी सर। भाई। ये मैं बोल रहा हूँ कि मौलाना साहब, ये जो आमिर भाई है, ये कोई मेरे को इनकी भी हिस्ट्री मैं देख रहा था, और फिर एडम एक करके एडम स्टीकर, उसकी भी मैं हिस्ट्री देखा। इन दोनों की जो अच्छा, एक लैंग्वेज मिनट मुझे राजेश एक भाई, ही तरीके राजेश भाई, से एक मिनट रुकें जरा, मैं बताता हूँ आपको। यार ये राजेश भाई है ना जी, राजेश भाई हैं, रुकिएगा जरा राजेश भाई, 1 मिनट आपको लेते हैं। ठीक है जी, 1 मिनट जरा मैं आपको लेने लगा हूँ, 1 मिनट मुझे मौका दीजिएगा। ठीक है जी, 1 मिनट, ठीक हो गया जी। कर क्या रहे हैं आमिर भाई आप? तफ्तीश तहकीक कर रहे होंगे। अच्छा, चलिए इन्हें रोहित राज को ले लेते हैं। चले भाई, रोहित राज, जल्दी जल्दी करना है ना। जी भाई रोहित मेरी आवाज नहीं आ रही है? जी, अब आइए। 1 मिनट रोहित, आप थोड़ा सा बिजी हो गए थे, मैंने कहा चलो रोहित को ले लेते हैं इतने। राकेश रुके भाई, अभी लेते हैं आपको। जी भाई रोहित, हजरत मेरी आवाज आ रही है? आपकी जी आवाज आ आ रही रही है। आ रही। जी रोहित बोले भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल था, ये प्रश्न था कि जी एक हदीस में आता है, सुनन अबू दाऊद की हदीस है, हदीस संख्या है 3641। उसमें ये हमको समझना था कि उस हदीस में यह है, अंबिया 3000 उलमा अंबिया के 3000 वारिस है। 3000। 3641। अच्छा जी। उस हदीस में यह है उलमा अंबिया के वारिस है, इसका क्या मतलब है? यानी जिस तरीके से अंबिया का काम है कि वो हक की बात फैलाते थे, और उनका काम है कि वो अल्लाह की बातों को इंसानियत तक पहुंचाते थे, तो उलमा का भी यही काम है। जाहिर है कि जब उलमा अंबिया के वारिस होंगे तो उनका काम भी इल्म, हिकमत, हक की बात लोगों तक पहुंचाना, यही उनका भी काम होगा। तो इस माना अगर है, और यही आखिर में इस हदीस के अंदर वजाहत है कि इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमन, अंबिया वर्षे में दीनार और दिरहम नहीं छोड़ते, वो तो इल्म छोड़ते हैं। जो जी जाहिर है कि जो उनका वारिस होगा वो इल्म फैलाएगा। जी। एक मुफ्ती साहब, एक और सवाल था ये। रोहित भाई, आप मुसलमान हो चुके या
अभी आप जी नहीं जी, हैं। मैं रिवर्टेड मुस्लिम हूँ। आमिर हाँ आमिर भाई द्वारा मैं कलमा पढ़ा था। हाँ 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 हाँ, याद आया। जी 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 जी। जी, एक्स कन्फ्यूज के नाम से हम आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, जी, बहुत बढ़िया। इसमें शायद हमने सेव नाम सेट नहीं किया। ठीक, चलिए, हो गया आपका सवाल। ये एक और मुफ्ती साहब सवाल था। जी जी। सही बुखारी की हदीस संख्या है 100। उस हदीस में ये आता है, आपको रुके हिंदी पढ़ के बताते हैं। उसमें ये आता है कि इल्म इस तरह नहीं उठाया जाएगा, ज्ञान इस तरह नहीं उठाया जाएगा। जो विद्वान कि होंगे, जो लोगों के दिलों से, मैं पढ़ देता हूँ, कि लोगों के दिलों से उसको अचानक निकाल लिया जाए, जी, बल्कि सही बुखारी की हदीस संख्या 100 है। जी जी, बल्कि इल्म इस तरह उठाया जाएगा कि उलमा जो है उनकी मौत आएगी, उनकी वफात हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ तक कि कोई आलिम नहीं बचेगा। जब कोई आलिम नहीं बचेगा तो लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, उन जाहिलों से सवाल किया जाएगा, वो बगैर जाने बूझे फतवा देंगे, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। ये हदीस जी है। जी, जी मैं रिसर्च कर रहा था। मैं जब मुफ्ती साहब शोध कर रहा था, उसमें ज्ञान के टॉपिक में हमने उसको कवर किया था। जी, तो इसमें कोई सवाल है आपको? आवाज आ रही है मुफ्ती साहब? जी आ रही है। यही इसमें कोई मतलब सवाल है इसमें ये आपको? था कि जी इसमें सवाल ये था कि लोग जाहिल लोग अपना ये बना लेंगे, मानने वाले जानने वाले बना लेंगे। हाँ उसमें जैसे क्या है? जी, यानी देखिए, जब उलमा हट गए तो अब एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। जब वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो दूसरे जो उलमा नहीं है, जिनके पास इल्म नहीं है, वो आकर उस वैक्यूम को फिल करेंगे। तो जी मिसाल के तौर पर एक आदमी है कि जो क्वालिफाइड मुफ्ती है, उसको फतवा देने का हक है, उसने पढ़ा हुआ है, उसके पास इल्म है, तकवा है, फियर ऑफ अल्लाह है, सारी चीजें हैं, उन सब चीजों को सामने रखता है, फतवा देता है। उसके बाद उसका इंतकाल हो जाए और उसकी जगह भरने वाला कोई ना हो, तो एक जाहिल आकर उसकी जगह बैठ जाएगा। जब जी देने लगेगा तो लोग समझेंगे यही मुफ्ती साहब है, वो उनसे फतवा लेगा, वो खुद भी गुमराह है और दूसरों को भी गुमराह करेगा। तो ये एक मतलब ये कि अल्लाह ताला ने, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जो आगे वाकयात होने वाले हैं उसकी तरफ पहले ही कर दिया कि आगे इल्म के अंदर डिक्लाइन आना शुरू हो गया है और आगे चलकर ऐसा होगा, ऐसा वक्त आएगा कि उलमा खत्म हो जाएंगे और जाहिल जो लोग हैं वो उलमा की जगह ले लेंगे। मतलब ये है कि उलमा जो विद्वान हैं, उनको जो सही होंगे, जो जानकार होंगे, उनको हटा दिया जाएगा, उठा लिया नहीं जाएगा। नहीं और नहीं, उसके हाँ, बाद उनको रिप्लेस करने वाला कोई नहीं होगा। नहीं, जब एक आलिम मर जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, मरना तो सबको है, उसका इंतकाल हो जाता है, तो उसकी जगह लेने वाला उस जैसा कोई शख्स नया नहीं आएगा। ये मतलब है इसका। आहिस्ता जी, आहिस्ता आहिस्ता सारे लोग जो है, सारे बड़े बड़े उलमा चले जाएंगे, अब जाहिल लोग रह जाएंगे। और उसमें ठीक है भाई। ये तर्जुमा, इसके अनुवाद में मुफ्ती साहब हमने ये लिखा है, जो जो इस विद्वान से हमने सीख रहे थे, पढ़ रहे थे, जी जी कि उनसे सवाल भी करेंगे और उनसे पथभ्रष्ट भी हो जाएंगे, गुमराह भी हो हाँ जाएंगे। जी जी, ये मैंने कहा कि लोग ऐसे जाहिलों से सवाल करेंगे, फदल्लू व अदल्लू, वो खुद भी गुमराह हैं और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। ठीक। अच्छा हजरत, मैं स्क्रीन शेयर करके जो दिखाना चाह रहा था, ये राकेश साहब जो बैक स्टेज आए थे, जो कुछ हाँ तनकीद वगैरह को कंपैरिजन करना चाह रहे थे, तो ये देखें हाँ, जरा, ये राकेश साहब स्क्रीन के ऊपर है, ये जरा स्क्रीन पे देखिएगा हजरत, इनकी आईडी का नाम क्या है, ये देखें, उबैद शेख। उबैद शेख। ये उबैद शेख हैं, राकेश अब्दुल्ला हैं और उबैद खन्ना हैं, ये हैं। क्या मतलब? नहीं समझा मैं, ये क्या हो रहा है? यानी ये हैं मुसलमान और बन के आए हैं हिंदू और तनकीद करने जा रहे हैं मुझ पे। अरे तो क्या बात तो जी सुन लो जनाब, आप। राकेश। ये देखे जरा, मैं ये अभी तो मैं आपने पूछा भी नहीं कि आप मुस्लिम हो कि या हिंदू, में तो उस पर कोई बात ही नहीं रही। ये उबैद शेख क्या है, कौन है उबैद चलिए शेख? चलिए, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए। हाँ भाई राकेश बात साहब, बात आप हमारी मुसलमान हैं कि गैर मुस्लिम हैं? मैं जहाँ तक इल्म हासिल किया, मुझे तो यही मालूम है कि इस्लाम या इस्लाम की जो भी तबलीग है उस पे बात करो, जो आप में और हमारे में जो सिमिलर है उस पे बात करो। लेकिन आप भी मसाला ढूंढते रहते हो जैसे एडम ढूंढता है, इससे क्या, आप यही तो मैं मुसलमान आपसे हैं? सवाल एक पूछना मिनट, चाहता हूँ। राकेश साहब, आपको यहाँ इस तरह बात करने की इजाजत नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ, आप वही, मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं? मैं मुस्लिम हूँ। आप मुस्लिम हैं, तो आप ये नाम रखकर क्यों आए? मैं इसलिए मैं ऐड नहीं करते थे कभी, इसलिए मैं आज ये नाम रखा। तो नाम ये से गलत तो है। मैं नाम, देखिए, अभी तक आप सारे मुसलमानों से हम बात कर रहे हैं, कोई भी गैर मुस्लिम नहीं आया, आपने ये नाम रखा, तो ये तो देखें, आप अगर दूसरे की जबान से
आपको तकलीफ है, आपको आमिर भाई की जबान से तकलीफ है, चलो थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया, लेकिन अपने आप को जो आप नहीं है वो दिखाना, वो ज्यादा बड़ा जुर्म है, चूंकि ये धोखे में आता है। आमिर भाई धोखा नहीं दे रहे किसी को, ये चीज ज्यादा मैं सही है। यानी आप अगर ये समझकर आए हैं कि भाई आमिर भाई जो है वो इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, यानी उनका रवैया इस्लाम के खिलाफ है, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं, चलो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि आमिर भाई गलत कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम तो इस चीज की यानी इस चीज की को अलाउ करता ही नहीं, इजाजत देता ही नहीं है जो आप कर रहे हैं आज। ये तो अच्छी, ये आप मुनासिब बात नहीं। और ये पता क्या आप बात है, ये क्या इसका मकसद क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पता क्या होता है, यानी आपका नहीं मैं कह रहा, यानी इसका नुकसान क्या हो जाता है, ठीक है, अपनी तरफ से आप कर रहे होते हैं अच्छा काम। अब पता क्या है, ये एक हिंदू का इम्पोस्ट करके आया ना, इम्पोस्टर बनकर उसके डिस्गाइज में आए हैं, तो ये बाद में क्लिप जाएगा, बाद में दिखाएंगे, देखो जी हिंदू गया था इनके चैनल पे, उसने जाके कहा कि जी आमिर हक देखो ऐसे कर रहा है, ये तो फलाने के साथ, तो एक हिंदू के तौर पर मैं सामने आऊंगा। आप मुझे बताएं ये कितना बड़ा धोखा है सोशल मीडिया के ऊपर, कि पता नहीं कितने हिंदू वहां जाकर मुसलमान बन के नाम रख के बैठे होंगे, और ये यहाँ मुसलमान हमारे हिंदू का नाम रख के आ रहे हैं। आप जरा अंदाजा करें सोशल मीडिया के ऊपर चल क्या रहा है। आमिर भाई बात तो सुने, ये कोई राकेश कोई हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं आएगा। मैं आपको बहुत से बांग्लादेश में जो नाम दिखाऊंगा, मिथुन नाम है, वो भी आपने मुस्लिम तो है। सलाम क्यों नहीं किया, चलिए ठीक है, आपने तो आप सलाम क्यों बांग्लादेश नहीं से किया। नहीं, एक मिनट, आप बांग्लादेश से नहीं है ना भाई, आप इंडिया से हैं। इंडिया में इंडिया राकेश मुसलमान का नाम नहीं होता, इसीलिए, लेकिन हो भी सकता है, इसीलिए मैंने आपसे पहले ही पूछ लिया कि आपका, लेकिन आपने कहा आपका नाम राकेश असली नहीं है, आपने वैसे ही नाम रख दिया। आप अपने असली नाम से आते ना, तो देखें ये चीज जो है ना, ये गैर मुंसिफाना है, ये चीज गलत है। नहीं आपको नहीं, अगर हजरत किसी से हजरत कोई ये एतराज कह रहे हैं हो, ना, जी, अच्छा मैं हजरत ये कहता हूँ, हजरत ये कह एक रहे मिनट हैं ना आमिर कि भाई, आमिर मैंने भाई ये एक नाम कोई मिनट, हिंदू का नहीं है, मुसलमान का नाम नहीं है। वो कह रहे हैं मैंने ये नाम इसलिए रखा है कि आप मुसलमानों को नहीं ले रहे थे, क्या चलता है। हाँ जी 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 जी, देखिए भाई, जो भी आपका नाम है, आई डोंट नो आपका नाम क्या है, लेकिन आप कोई सवाल अगर मुझसे करना था या ओवरऑल इस्लाम के ताल्लुक से आपको करना था तो आप करें। फला की तो स्ट्रीम फला ने ये कह दिया, उस काम की इजाजत नहीं दूंगा आपको। नहीं नहीं मुफ्ती जी, मैं तो बस यही सवाल करना कि क्या ये जायज है, इस तरह से जो है स्ट्रीम करना जायज है? वही तो मैं पूछ रहा मैं था आपसे, क्या इजाजत ये नहीं जायज है? दूंगा आपको कि आप किसी की स्ट्रीम के ताल्लुक से बात करें। अगर किसी से मसला है तो उसकी स्ट्रीम, उसी शख्स की, यानी जिन साहब से आपको मसला है, आमिर भाई की स्ट्रीम जुमा को होती है, आप उनकी स्ट्रीम पर जाइए, उनसे कहिए कि आमिर भाई आप ये बात कह रहे हैं, क्या ये जायज है? आप उनसे सवाल कीजिए, यहां आकर सवाल ना बिल्कुल। करें, ठीक है? चलें, और शुक्रिया वहीं बहुत आके बहुत। मुझसे यही नाम रख के आइएगा, मैं आपको सबसे पहले लूंगा, ठीक है ना जी। बहुत शुक्रिया मेरा भाई, थैंक यू। सॉरी जी चलें भाई, हजरत। अच्छा बस मेरे ख्याल से फिलहाल के लिए इतना ही करते हैं। काफी देर हो गई है, यानी काफी देर का मतलब ये है कि हमारे उसूल से 22 मिनट ऊपर हो गए हैं। ये हुसैन हसनी जो अभी क्रिस को लेकर आए थे, जी हुसैन भाई, hold on. Let me call you back. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी हुसैन भाई, क्या हाल चाल है? बहुत बहुत शुक्रिया क्रिस को लेने का। ये इस लड़के को मैं 15-20 साल से मैं जानता हूँ। तो ये हमेशा मुझसे रिस्पेक्टफुली बात करता रहता है। कभी कभार मैं फेसबुक पे मैं लिखता हूँ जो मैं चीज़ें लर्न कर रहा हूँ कुरान के आयतों के बारे में, तो वो इम्प्रेस होकर फिर मुझे मैसेज करता है, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। अभी मैंने फेसबुक पे मैंने लिखा था कि लिबरल्स बोलते हैं कि गेस के बारे में, फॉर एग्जांपल, वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि कौमे लूट पर जो अजाब आया था वो इसलिए आया था कि जब वो रेपिस्ट है। तो मैंने फिर सूरह अल अराफ की आयत में खोल के मैंने पढ़ी, आयत नंबर 81, आयत नंबर 82। उसमें तो ये लिखा है कि कौमे लूत ने वो हरकत करी थी जो आज से पहले किसी ने कभी नहीं करी थी। तो इससे लिबरल का मुकदमा कमजोर आता है। तो मैंने ये बातें लिखी, तो वो फिर उससे मुझे मैसेज किया, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। मैंने बोला मैं पोजीशन में नहीं हूँ कि तुम्हारी बातों का जवाब दे सकूं, तो इससे बेहतर है कैसर भाई से और आज से बात कर लो। चलें ठीक है, बहुत बेहतर है। वैसे क्रिस से अच्छी बात हो गई है, और लेकिन मैं इंशाल्लाह मजीद वाज़ेह अंदाज से उनसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बहुत से लोग अपनी बात खुलकर नहीं रख पाते हैं। हमने उनके अकीदे के ताल्लुक से गुफ्तगू की। इस्लाम की दावत तो जब ही होगी ना जब कुफुर के जो जरासीम उनके दिल में है वो जरासीम खुरच कर निकाल न दिए जाए। तो मैं, आपका ईमेल मेरे पास आया हुआ है, आई एम सॉरी मैं उसका जवाब नहीं दे पाया था, तो मैं अपना नंबर आपको भेज दूंगा। मेरा एक और सवाल ये है, मैं एक मिनट में आपको अपना नंबर भेज दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और मेरा नंबर सेव कर लीजिए, फिर दोबारा ना खोएं इंशाल्लाह। जी भाई, मेरा एक और सवाल है, एक तो ट्रांसजेंडर्स के हवाले से और दूसरा नमाजों के हवाले से।
और ये कैसर भाई से मैं बात करूंगा कि एक सवाल कर ले ट्रांसजेंडर के ताल्लुक से क्विकली, चूंकि हमें फिर ये रैप अप ओके करना है। ओके ये जो ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं, मैं उस आदमी उन लोगों की तो मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ जो अपने खलकत को उभारते हैं। मतलब जो बॉर्न आदमी होते हैं और बोलते हैं 30 साल बाद जाके 5-6 बच्चे पैदा करके बोलते हैं आई एम अ वुमन ट्रैप्ड इनसाइड अ मैन्स बॉडी, उससे तो मैं एग्री नहीं करता। उनको तो मार के निकाल देना चाहिए मुस्लिम सोसाइटी से, ठीक है। मगर कैसे भाई वो बातें हाईलाइट नहीं करते जो बचपन से खुन्नस बचपन से उनके जिन्स का तयन करना मुश्किल होता है, और फिर जी। हमारे हमारे जो खानदान वाले होते हैं ऐसे लोग को एक्सेप्ट नहीं करते। अब उनको फिर डाल देते हैं, जो हिजड़ा गैंग्स होते हैं, गुरुज होते हैं, फिर उनको प्रोस्टिट्यूशन सिखाते हैं। अगर वो इस्लाम में भी दाखिल होना चाहते हैं, नमाज़ें पढ़ना चाहते हैं, उनको मस्जिद में भी जी। नहीं आने दिया जाता, उनको 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 कुरान की बातें नहीं सिखाई जाती। तो इन लोगों उन लोगों के बारे में क्यों नहीं बात की जाती? जब इन लोगों के राइट्स के बारे में बात नहीं बिल्कुल, होती, तो फिर वो बिल्कुल आगे आपने बहुत अच्छी वो लोग फिर उल्टी सीधे बातें करते हैं, इस्लाम ये है, इस्लाम वो है, चले वो ठीक है है। ठीक है ठीक है, अब जवाब देने दीजिए। जी बिल्कुल कैसर भाई। आपने बहुत अच्छी बात की हुसैन भाई। देखिए गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में जो ट्रांसजेंडर्स एक्ट 2018 आया था उसकी हमने फ्यूरियसली उसके खिलाफ रेजिस्टेंस की, पब्लिक प्रेशर बिल्ड किया। अल्लाह का शुक्र है कि वो भी बहुत पीछे चला गया है। लेकिन उसके मुकाबले में हमने साथ ही खुनसा प्रोटेक्शन एक्ट 2022 बिल की सूरत में वो भी जो सेनेटर मुश्ताक साहब हैं उन्होंने वो वहाँ पे सबमिट किया। अब उस पर बहस होनी है। अब हमारा कंसर्न सिर्फ ये नहीं है कि हमने ट्रांसजेंडर एक्ट को ख़त्म करना है, बल्कि हमारा ये है कि हमने खुनसा प्रोटेक्शन एक्ट को हमने एनेक्ट करना है पाकिस्तान में कानून के तौर पे। उसमें जो आर्टिकल्स हैं उसके 2 सेक्शंस उसके वो मैंने सजेस्ट किए थे, सेनेटर साहब को दिए थे। उसमें पहला यही था कि जिस फैमिली में इंटरसेक्स बच्चा पैदा होता है, अगर उसको किसी गुरु, किसी गैंग के हवाले किया जाता है तो इसको क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पर डिक्लेयर किया जाए और इसको वालिदैन को सज़ा दी जाए। अगरचे मैंने साथ ये लिखा था कि सज़ा ऐसे दी जाए कि बाकी बच्चों की हक तलफी ना हो, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से 3 साल लिख दिया कि 3 साल जेल होनी चाहिए। तो मेरा व्यू ये था कि अगर 3 साल जेल हो जाती है तो बाकी बच्चों एक बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बाकी बच्चे बेआसरा हो जाए तो ठीक तो नहीं। खैर वो उन्होंने 3 साल का उन्होंने सजेस्ट कर दिया, अब उस पर बहस होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस चीज़ पे कन्विंस्ड हैं कि बच्चे का बेसिक राइट ये है कि वालिदैन उसको डिसओन ना करें। ये हमारी पार्लियामेंट में जा चुका है। बाकी जो आप कह रहे हैं कि इस्लाम उस बारे में क्या कहता है, तो इस्लाम इस बारे में बड़ा क्लियर है कि जिन्स और सिन्फ इस्लाम डिफरेंशिएट नहीं करता। इस्लाम में सेक्स और जेंडर ये 2 अलग-अलग चीज़ें नहीं हैं। अगर कहीं पे इंटरसेक्स बच्चा पैदा होता है तो फ़िक़्ह में उस पे पूरे का पूरा मज़मून मौजूद है कि किस तरह से स्टेट अपने मैकेनिज्म को यूज़ करके आइडेंटिफाई करेगी, फाइनली डिक्लेयर करेगी कि ये बच्चा मर्द है या औरत है। उसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी शामिल है, उसमें नफ्सियात भी शामिल है। अब किसी के लिए उठ के कह देना कि नहीं मैं सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी है और मैं ये है और वो है, ऐसा नहीं है। अगर किसी मर्द को ये लगता है कि उसके जो रुझानात हैं वो औरत वाले हैं, या किसी औरत को लगता है कि उसको रुझानात मर्द वाले हैं, तो वो एक बीमारी है जिसे जेंडर डिस्फोरिया कहा जाता है। वो एक ट्रीटेबल बीमारी है। यूके में स्पेशल होते हैं, उन्हें कहा जाता है जीडीसीज, जेंडर डिस्फोरिया क्लिनिक्स, जिसमें आपको अप टू 2 इयर्स जाना पड़ता है अगर अपनी आइडेंटिटी चेंज करना चाहते हैं। लेकिन उससे और वो भी उस सूरत में जब आपको वहां से सर्टिफाई किया जाता है कि आप वाकई ही बीमार हैं, डायग्नोसिस हो चुका है। ये झूठ बोलते हैं लिबरल्स, कहते हैं कि जेंडर डिस्फोरिया बीमारी नहीं होती। तो कैसे नहीं होती? तो उसके लिए ये नहीं किया जा सकता कि अगर किसी को एक बीमारी है तो उसकी बीमारी को बुनियाद बना के उसके लिए गुनाह का रास्ता खोल दिया जाए। उसका तरीका ये है कि बीमारी को ट्रीट किया जाए। मैं आपको बता सकता हूँ बहुत से जो पेडोफाइल्स होते हैं, कुछ लोग तो होते हैं ना आदतन ऐसा करते हैं, कुछ लोग वाकई साइकोलॉजिकली बीमार होते हैं। तो क्या उनको हम उनकी साइकोलॉजिकल बीमारी को सामने रखते हुए इजाजत दे दें कि वो बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती करें? ना एग्जैक्टली इसका मेरा काउंटर आर्गुमेंट हो सकता है कि बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती तो ज्यादती होती है, लेकिन यहाँ पे अच्छा, जो 2 दूसरी बात ये कि कैसर भाई फिक़्ह इस्लामी में बाबुल खुनसा के ताल्लुक से बहुत सारे मसाइल, बाकायदा एक सेपरेट चैप्टर है फिक़्ह इस्लामी में। तो हुसैन साहब, ये जो हमारे मुस्लिम देसी मुआशरों के अंदर अगर मिसट्रीटमेंट किसी क्लास के साथ किया जाता है तो यकीनन ये एक इस्लाह मुआशरे का इशू है। मुआशरे में इस ताल्लुक से अवेयरनेस लानी चाहिए। इसको बुनियाद बनाकर ये जो सो कॉल्ड गेज एंड लेस्बियंस हैं, इन्होंने बाकायदा पाकिस्तान में एक बिल जो है वो इनेक्ट करा दिया। तो सवाल दैट्स तो वेरी ये बनता है
जब उलमा कराम को ये सब ये पता है कि पूरा बाब मौजूद है। मैंने 15 साल की उम्र में मैंने तारीख की मैंने किताब पढ़ी थी। हुसैन भाई मैं उससे आपको यहाँ रोकता हूँ, हुसैन भाई मैं आपको यहाँ रोकता हूँ। इस ताल्लुक से मौलाना तारिक जमील साहब की जो खिदमात हैं, वो उनके चैनल के ऊपर उन्होंने बारहा अपनी तकरीरों में जिक्र किया है कि किस तरह उन्होंने जो हर्माफ्रोडाइट्स हैं या जिनको खुंसा कहा जाता है, उनमें उन्होंने जाकर काम किया, उनको सेटल किया, उनकी अपनी बस्तियां थी जहां पर ये सारी फहाशी होती थी, वहां जी से उनको निकाल कर लेकर आए। तो ऐसा नहीं है, यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिस लेवल पर काम होना चाहिए काम हो रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल इग्नोर किया गया। मौलाना तारिक जमील साहब जैसी मोतबर शख्सियत जो है वो इस मैदान में है, तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो निकला होगा ना। मगर मुझसे मौलाना हम तारिक जमील उससे से पहले उससे और उलमा कराम ने काम क्यों नहीं अल्मास करा? भाभी हुसैन हुसैन भाई मैं अब टाइम सेव करना चाहता हूँ। देखें, हम बात इससे आगे बढ़ चुकी है। जो मौलाना तारिक जमील साहब ने किया और बहुत से लोगों ने किया, उसका इफेक्ट यह है कि अभी रायविंड में हमारा एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, जिसमें तबलीगी इज्तिमा, जी जी, जी तबलीगी इज्तिमा। ये तबलीगी इज्तिमा होता है, माफी चाहता जी हूँ। हाँ। तो उसमें इस बार जो लोगों ने अपने वहाँ पे वो वीडियोस बनाते हैं सारे करते हैं, उसमें बहुत से मुखन्नस थे, बहुत से खुनसा अहबाब थे जी ऐसे जी, जिन्होंने अपनी वीडियोस बनाई है, वहाँ पे बैठे हैं, सुन रहे हैं, बता रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हमें अब आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए कि जो आपका सवाल है ना कि फिक्र में मौजूद है तो ये क्यों नहीं, वेल फिक्र में मौजूद है, अब उसको लेजिस्लेशन में एनश्राइन किया जा रहा है। इनफैक्ट जो मैंने अर्ज किया कहते कि जो मैंने उसमें 2 आर्टिकल जो मैंने सजेस्ट किए थे, वो दूसरा था ही यही कि खुनसा टर्म एक आर्जी कैफियत के तौर पे स्टेट डिक्लेयर करेगी थ्रू द टाइम कि जब तक स्टेट उसको मर्द या औरत डिक्लेयर नहीं कर देती। जब वो डिक्लेयर हो जाता है तो खुनसा की टर्म भी उससे आदमी से रिमूव हो जाएगी, वो इवेंचुअली मर्द या औरत होगा। तो वो सारे का सारा फिक के प्रिंसिपल पे ही डिराइव है। तो अब तो हमारी लेजिस्लेशन का हिस्सा इंशाल्लाह बनने जा रहा है। और तो आखिरी मैं सवाल इंशाल्लाह ये है, बहुत आगे आखिरी बढ़- सवाल चले ये ठीक है, नहीं हुसैन भाई हो गया, अब मैंने एक आपको आखिरी इग्नोर सवाल, कर दिया है। एक हुसैन आखिरी भाई सवाल। अब मुझे खत्म करना है प्लीज। ओके, नो बहुत हो प्रॉब्लम। गया है, थैंक यू, थैंक यू। जज़ाकल्लाह अस्सलाम खैरन, वालेकुम। शुक्रिया बहुत बहुत। तो बहुत बहुत शुक्रिया, सॉरी मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन लोग सवाल ले बैठे हो, लेकिन हम आधे घंटे बल्कि 31 मिनट ऊपर जा चुके हैं। हमारा तो 3 घंटे का मार्क है, ये कैसे गलत हो गया आज। मेरे ख्याल से आमिर भाई ने याद नहीं दिलाया, तो खैर चलें। 1 घंटा जस्टिस साहब को ले गए थे ना शुरू के। हाँ, ये जस्टिस साहब के उसमें चक्कर में चला गया 1 घंटा। बहरहाल चलें ठीक है। एनीवेज़ आज की जो स्ट्रीम है माशाल्लाह बड़ी अच्छी रही। कैसर भाई आपने शुरू से साथ दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। बारकल्लाह फीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। चलें ठीक है आमिर भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया। आते रहिएगा। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।